You should not wait for honing those skills कि मैं पहले skills को 100% सीख लूँ तभी करूँ, right? No, like मेरे को आता तो है नहीं, मैं जाती थी YouTube पे वीडियो से सीखा, I used to implement that and give it to them. Welcome everyone to Byte Talks episode 3. Today with us we have Muskan Agarwal Didi, who's currently pursuing information technology engineering from VIT, Vellore. So we'll like to introduce her. If Didi, you could introduce yourself in a bit. Yeah, I have completed my graduation actually, not pursuing. Okay. So I recently completed my graduation, BTech in Yeah. IT from VIT Vellore, and I am really active on LinkedIn. I do post a lot around personal branding on LinkedIn and talk about that. And really excited to be on Byte Talks with Saksham and Naman and answer your questions about VIT life, and other thing that I can answer about. So yeah, really excited to answer all your questions. Okay, so that was quite a great introduction, Didi. But you didn't tell about the various achievements you were having. So Didi's also a content creator. She's worked with various companies, interned at various companies as a video creator as well as a web developer. So, and other than that, even managed to be a part of various clubs and social activities, and also had a decently good academic record. So, how did you manage all this, Didi? Like, you were also part of clubs, you were also doing great in academics, and you're also interning at these various companies. So, how did you manage all this simultaneously? Right. So one word answer, that is, I think, curiosity. Like when I came in first year, I was like VIT is like लोग कहते हैं कि there are so many people there, but with so many people come so many opportunities, right? Like whether you are good at art, whether you are good at writing, whether you are good at reading, there is a club for anything and everything that you're good at. बहुत मुश्किल से होगा that there is no club of your interest in VIT. So I was like, I'll try out different things. I joined NGOs. I joined a lot of technical clubs, a lot of non-technical clubs. I remember even auditioning for a dance club, though I did not get selected. But I wanted to try out everything in the start. FOMO, you can say कि मैं कहीं भी छूट ना जाऊँ. So that is why, and of course there was an issue with timing. कभी कभार एक क्लब की मीटिंग 6 to 7 होती थी and then दूसरे क्लब की 7 से 8. That is something you have to manage. If you're coming to VIT, एक चीज दिमाग में लेके चलो कि it will be hectic. It will not be a smooth sail. I think Saksham and Naman will know it by now, right? So yeah, I mean, and academics तो like if you are in the first, मेरे को ये बहुत clear था, whatever I'm doing, I will never let my academics hamper because of that, right? Because eventually I am here to study, right? Of course, socializing is important, growing, upskilling is important, but academics I always knew कि पढ़ाई तो करनी है, उसके साथ साथ भी I'll put in extra efforts to learn other things as well. So through your LinkedIn profile, I could see that you also have a love for content writing. So what inspired or what made you choose that field or go into that field? Right. So in the start, right now, all of you must know me. Like I create a lot of content on YouTube or Instagram or various other platforms. But in the start, I was quite a bit of introvert, right? I did not like coming in front of people in the camera. I could not even speak fluently, right? So the best mode for introvert people kya hota hai? We write stuff, right? And we'll just post it out. And I used to do the same. I had my Medium page as well. Now I don't maintain that, but earlier I used to have that. And whatever my idea of writing is simple. I'll learn, I'll write about it so that more people can learn about that, right? So I used to learn something, no matter कितना छोटा से छोटा topic भी होता था. I used to write about it and just post it. Similarly, last to last year, I think when I did my internship at Amazon, right? Whatever I learned, जो भी मैंने उधर सीखा, I made posts around that and I just posted it on LinkedIn without any goal of कि ये viral जाएगा या so many people will like that. And that post just blew up. It got close to around 150,000 impressions and everything, 1,600 likes. And I was like, okay, people are liking what I'm writing, so why not write more?
that is how my journey of content writing started. And of course, one other major thing was CodeChef when I was a part of it in my club, right? So we maintained a CodeChef blog page. Like if you're in college right now, you must know that most of the clubs have their own blog pages on Medium and all, right? So there I used to contribute a lot, like a lot of technical things, whatever I learned, I used to contribute. And there I realized, okay, whatever I'm writing, people are actually liking that. And even I am liking, मेरे को लिखने में मजा आ रहा है. From there, the love for content writing started, and yeah, I've been doing this for almost 2.5 years now. Okay, so that's a subsidiary to the web development space and the other things that you're working on. Yes, see, web development तो ठीक है, मतलब start में I tried out everything. Web development I pursued, but ML भी try करा था, बाकी data science का भी कुछ भी try करा था. I tried almost everything. फिर web development front end में मेरे को interest आया. I liked कि मैं कुछ कर रही हूँ and I can see that visually. Right, so that is why I then pursued that. And for me, the major thing is how to learn something. उसको कर लो and सीख लो. Right, I am not a person who will watch 10 videos and then sit for an internship. Like I remember applying for web dev internships front end when I just knew simple HTML और उसमें React की जरूरत थी. मुझे नहीं आता था, पर ठीक है, अप्लाई करने में क्या जा रहा है. I applied for it. If I got selected तो मैं सीख लेती थी उधर. लाइक वीडियो देखी, उन्होंने कुछ बोला ये करना है, मैं बोल देती थी ठीक है, मैं करके दे दूंगी आपको. मेरे को आता तो है नहीं, मैं जाती थी यूट्यूब पे, वीडियो से सीखा. आई यूज टू इम्प्लीमेंट दैट एंड गिव इट टू देम, राइट? सो आई ऑलवेज बिलीव्ड इन लर्निंग बाय डूइंग. सो दैट इज हाउ वेब डेवलपमेंट एंड इवन कंटेंट राइटिंग आई परस्यूड. So Didi, you mentioned internships. So like most of us are in our second years and probably some people are in third year. So what do you think is the right time to start doing internships? Like probably, is it mandatory to do it after the second year? Should people start it early by doing it in the first year? Or should they wait till the third year to probably start doing internships to gain those skills and then start working? Or probably, like you said, that you didn't have that much skills, but you wanted to try it out. Yeah. So should people take that path, or should they wait? First, they should gain skills and then they should start working. नहीं, ऑफ कोर्स, लाइक इफ पर्सनल बिलीफ कि मैं तो अगर इफ आई वुड हैव टू गो बैक इन टाइम, मैं फर्स्ट ईयर से ही अप्लाई करना स्टार्ट कर दूंगी. भले ही स्किल्स आती है नहीं आती है, लाइक कई लोग क्या करते हैं, दे सी द रिक्वायरमेंट्स कि 3+ years ऑफ एक्सपीरियंस, एंड रिक्वायरमेंट्स देख के डर जाते हैं, राइट? कि अब यार इतना इतना तो हमें आता ही नहीं है ये सब. एंड व्हाट दे डू इज दे डोंट अप्लाई, राइट? बट व्हाट्स द हार्म इन अप्लाइंग? क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा रिजेक्ट हो गए, अभी भी तुम्हारे पास वो है नहीं. अगर वो रिजेक्ट करेंगे तो भी तुम्हारे पास नहीं होगी. सो देर इज नथिंग टू लूज, राइट? एंड द राइट टाइम, ऑफ कोर्स, इफ यू आर वेटिंग कि थर्ड ईयर के बाद ही करेंगे, आई वुड सजेस्ट नो. अगर इफ यू वांट कि चलो थोड़ा सा सीख के फिर करना है, तो स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड ईयर, स्टार्ट अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप्स, राइट? आई मीन इंटर्नशाला इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जिसने मुझे मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप दी थी. इट वॉज इन येलो क्लास. इट्स अ बिग कंपनी नाउ, बट व्हेन आई जॉइंड इट वॉज अ रियली स्मॉल कंपनी, एंड आई जॉइंड देयर आई थिंक जस्ट एज अ सम सोशल मीडिया का कुछ इंटर्नशिप था. बट आई यूज टू अप्लाई फॉर एटलीस्ट 100 इंटर्नशिप्स एक बार में. लाइक इंटर्नशाला पे तो ये होता है, यू जस्ट experience and learn new skills. So is it mandatory, or is YouTube sufficient enough that we could learn most of the things from there?
because people think unless we start buying a course and start paying for it, we are not like they're not serious about it. I Yeah. think ट्रू सी yeah, होता है ना कि जब यू पे फॉर समथिंग यू yeah, आर कि वो होता है कि यार पैसे दिए liable. You are liable यू आर to लाइबल कि yeah. यार पैसे दिए तो कर ही लेते हैं राइट एंड जब कुछ भी फ्री में मिलता है ना तो उसकी वैल्यू नहीं होती है ये होता है बट बस यही मुझे लगता है दोनों में डिफरेंस है उससे ज्यादा एक और डिफरेंस है कि यूडेमी या कोर्सेरा पे आपको सब कुछ लाइन से मिल जाएगा राइट जैसे फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट आप सीख रहे हो तो उसमें सिखा देगा कि पहले ये सीखो स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन यूट्यूब हो सकता है स्टेप 1 एक जगह हो स्टेप 2 एक जगह हो स्टेप 3 एक जगह हो राइट तो उधर बस ये तो मैं इशू होता है कई लोगों को कि हाँ एटलीस्ट मेरे साथ ये हुआ था कि मैं डीएसए में पहले मैं ट्रीज पढ़ना स्टार्ट करा था विदाउट नोइंग व्हाट लिंक लिस्ट इज राइट नाउ आई थिंक मतलब मैं कितनी डम थी कि मैंने एंड देन आई वाज लाइक कि यार मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है ट्रीज क्या है बिकॉज मैंने लिंक लिस्ट तो पढ़ा ही नहीं उसका प्री रिक्विजिट है वो राइट बिकॉज आई स्टार्टेड स्टडिंग यूट्यूब से उसी की जगह इफ आई वुड हैव चूजन यूडेमी राइट तो उन्होंने पहले मेरे को लिंक लिस्ट पढ़ाया होता उसके कॉन्सेप्ट्स बताए होते देन आई वुड हैव मूव टू ट्रीज तो बस दोनों में यही डिफरेंस है बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि यार अगर इफ यू आर इन अर्ली ऑन इन फर्स्ट और सेकंड ईयर टाइम है तो प्लीज यूट्यूब पे जाओ यार यूट्यूब पे देर आर सो मेनी चैनल्स विच आर ऑल्सो क्रिएटिंग दीज प्लेलिस्ट जिसमें लिटरली स्टेप वाइज सब कुछ दिया हुआ है यू डोंट इवन हैव टू पे अ सिंगल पेनी फॉर एनीथिंग देयर इट्स फ्री एजुकेशन so right so yeah yeah. you should So, go on YouTube. so do you remember any pages or any channels that you followed during your time to probably learn skills or something? राइट ओके डीएसए स्पेसिफिक बताती हूँ सो डीएसए Okay. में देर आर लॉट ऑफ भैया दीदी अवेलेबल राइट नाउ बट a lot of them are quite helpful no matter उनको कोई कितना भी बोल दे वन इज Yeah. लव बब्बर तो है ऑफ कोर्स उनकी काफी सारी वीडियोस देखी हैं बट देर इज अदर पर्सन अनुज भैया देर इज वन पर्सन कॉल अनुज भैया उनके मैंने मतलब वो व्हाइट बोर्ड पे एक क्वेश्चन करके मेरे को दिखाते थे तो मतलब उनके वीडियोस से बहुत हेल्प होती थी तो लाइक मेरे को लीड कोड पे मैं क्वेश्चन करती थी मेरे को नहीं आता था आई यूज्ड टू जस्ट सर्च अप ऑन हिज प्रोफाइल हर क्वेश्चन आई थिंक लीड कोड का उनके यूट्यूब पेज पर है तो मतलब उनका समझाने का तरीका आई रियली लाइक्ड बट हियर अगेन इट कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन आई विल नॉट रेकमेंड कि आप यही फॉलो करो देर आर हंड्रेड्स ऑफ यूट्यूबर जो लिंक्डइन पे बता रहे हैं राइट जस्ट सी कि तुम्हें किससे सबसे ज्यादा समझ में आ रहा है राइट आई मीन एंड जस्ट फॉलो दैट पर्सन ऐसे मत करना कि एक दिन एक यूट्यूबर का देख रहे हो दूसरे दिन दूसरे यूट्यूबर का देख रहे हो तीसरे दिन तीसरे का देख रहे हो एंड फोर्थ डे यू आर ओवरवेल्म्ड कि यार अब तो समझ ही नहीं आ रहा है इतने सारे लोग इतनी सारी अप्रोचेस बता रहे हैं राइट फॉलो वन पर्सन एंड एंड तक उसी को फॉलो करो आई वुड सजेस्ट Okay. So with Didi, with the new algorithm of social media in which your post is sent to more people by the number of likes or the comments you receive on your post. So what do you think are the some marketing strategies that we could, as a creator or a developer, use to make our profile more interactive, more out there? So राइट how to reach out to larger set of audience? राइट सो सिंस आई एम अ लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग से टीचर्स तो मैं लिंक्डइन के स्पेसिफिक बताऊंगी ऑफ कोर्स देयर आर अदर प्लेटफॉर्म जिसमें दूसरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं तो लिंक्डइन इफ यू वांट टू रियली ग्रो ऑन लिंक्डइन राइट नंबर वन इज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर प्रोफाइल with optimization what I mean is ki do you think your profile is correct right like the profile photo is correct do you think the banner reflects your personality these are the two very important things next is headline कि आप हेडलाइन में क्या लिख रहे हो राइट जस्ट डोंट राइट दैट सॉफ्टवेयर डेवलपर एट XYZ कंपनी write what you do जैसे impacting 30 million plus people from my code or something that you actually do right include people include numbers in that how many people have you helped whom do you help right तो उसमें हेल्प कर सकते हो देयर आर लॉट ऑफ टूल्स हेडलाइंस के तुम्हें मिल जाएंगे आई ऑल्सो कीप पोस्टिंग अ लॉट ऑफ स्टफ ऑन माई ओन लिंक्डइन यू कैन रेफर दैट नेक्स्ट थिंग इज कमिंग टू द पोस्ट्स में तो यार ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंटेन कंसिस्टेंसी कि मतलब
तुम्हें हफ्ते में 5 पोस्ट तो करने ही हैं इफ यू वांट टू ग्रो ऑन लिंक्डइन एंड विद 5 पोस्ट्स आई डोंट मीन चैट जीपीटी पोस्ट्स राइट इट्स वेरी इजी इन टुडेज वर्ल्ड की एक प्रॉम्प्ट लिखा एंड वो तुम्हें 500-700 वर्ड्स का लिख देगा राइट बट स्टिल एआई कैन नॉट टेल योर स्टोरी and that is something that people want to read. So all my posts that have went viral, जितने भी हुए हैं 500 likes, 600 likes, 1000 likes, all of them एक word I have written and I've also A/B tested posts की chat GPT से लिखवा के post करा and उसमें आप देखोगे the difference in the number of likes and comments, engagement, right? ये होता है. Then the next thing is pictures. A lot of controversy on LinkedIn goes on कि पिक्चर्स लोग ऐड कर देते हैं, सेल्फीज ऐड कर देते हैं, कोई रेलेवेंसी नहीं होती एंड देन वायरल चले जाते हैं राइट. व्हाट आई वुड सजेस्ट इज फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नथिंग रॉन्ग एडिंग इन अ पिक्चर. अगर कुछ एल्गोरिदम सपोर्ट कर रहा है यू हैव टू बेसिकली सपोर्ट द एल्गोरिदम, तभी आपको एल्गोरिदम सपोर्ट कर तभी एल्गोरिदम आपके पोस्ट को सपोर्ट करेगा राइट. नथिंग रॉन्ग विद पोस्टिंग अ पिक्चर टिल द टाइम इट इज रेलेवेंट टू योर पोस्ट. फॉर एग्जाम्पल मे बी अगर आप टीम की बात कर रहे हो तो जस्ट ऐड योर टीम पिक्चर. अगर आप अपनी किसी पर्सनल लाइफ स्टोरी की बात कर रहे हो जस्ट ऐड अ पिक्चर ऑफ दैट टाइम राइट सो दैट पीपल कैन रिलेट कि ठीक है ये पोस्ट से रिलेटेड है पिक्चर. जस्ट कीप दैट इन माइंड. अपार्ट फ्रॉम दैट यार लिंक्डइन तो बहुत सारा है. आई कैन जस्ट कीप going on and on and on, but what you guys, whoever is watching, what you can do is you can just scroll through my profile. I keep posting whatever new things that I learned on my LinkedIn profile, how to optimize it, how to grow on LinkedIn, so maybe that will help. So we'll attach Didi's profile down so you can probably look at it. So Didi, like most of the people, like they do not even know like what's the use of benefit of using LinkedIn. What's the reach of LinkedIn? Like most of the people in the first year and the second year, they don't even have a LinkedIn profile. Right. Like, so could you tell us like what LinkedIn helped in your career to Right. in shaping your career, or how did it help you to reach out to people or probably get some internships if you did using LinkedIn? So Right. probably you could tell us about that. Yes, I think LinkedIn, if used in the right way, it's like a gold mine for students as well as working professionals. पहले students की बात करते हैं, right? For example, like if you want to reach out to a founder of XYZ company, supposedly यार तुम्हारी dream company, what's your dream company Saksham? Like which is that one company that you really want to work at? और या फिर उस सबसे favorite company कौन सी है? McKinsey. मैकेंजी. सपोजली तुम्हें मैकेंजी में जॉब चाहिए तो अब यार तुम बहुत ज्यादा अप्लाई कर रहे हो उनके करियर पोर्टल पे, तुम्हें जॉब नहीं मिल रही क्योंकि ऑफ कोर्स उनके पास 1000s and 2000 और पता नहीं कितने सारे एप्लीकेशन आते हैं राइट. बट यू कैन फाइंड अ मैकेंजी रिक्रूटर ऑन लिंक्डइन जिसके पास हो सकता है उसके पास पावर है रिक्रूट करने की तुम्हें, बट उतने लोग उसको रीच आउट नहीं करते डायरेक्टली. बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू दैट पर्सन, उसको डायरेक्ट अपना रेज्यूमे भेजो एंड देयर आर अ लॉट ऑफ चांसेस. अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स हैव गॉटन इंटर्नशिप्स एज वेल एज फुल टाइम. ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट तुम्हें मिल जाएगा, बट दे माइट सेंड यू एन ऑनलाइन असेसमेंट, दे माइट सेंड यू एन इंटरव्यू लिंक और समथिंग राइट. सो बेसिकली आप डायरेक्ट एक रिक्रूटर को रीच आउट कर सकते हो without going through that process, right? Of course this does not guarantee a job, but like you know तुम्हारा access बहुत easy हो जाता है to high profile people. मतलब LinkedIn has helped me talk to so many CEOs and founders of such big companies I did not even dream of कि मतलब मैं इनसे बात कर पाऊंगी कभी, I did not even think of, right? तो वो accessibility बहुत easy हो जाता है right. And of course similar as Internshalla, LinkedIn is also a great platform. उसमें एक job section होता है. I don't know how much do college students use it. I did not use it a lot in my college time. I used Internshala and other platforms, but there is a job section जहाँ पे आप filter out कर सकते हो कि आपको कौन से लेवल का जॉब चाहिए. आपको इंटर्नशिप चाहिए, आपको रिमोट चाहिए, आप पूरा फिल्टर लगा लो. आपको किस डोमेन में चाहिए, आपको लिस्ट ऑफ कंपनीज आ जाएंगी एंड देन उसमें भी यही होता है, यू मेक अ रेज्यूमे वन टाइम एंड देयर इज जस्ट अ सिंगल क्लिक. आप सिंगल क्लिक करके सब में अपलोड कर दो राइट. देन देयर इज ऑल्सो नोटिफिकेशन सेक्शन की सपोजेडली तुम्हें सक्षम SD इंटर्नशिप चाहिए राइट. तुमने आज सारे अप्लाई करती है, उसमें तुमने नोटिफिकेशन ऑन कर दिया, कल को और कोई ओपनिंग आएगी ना यू विल बी नोटिफाइड फर्स्ट कि लाइक ये ओपनिंग आई है सो यू कैन क्विकली अप्लाई
राइट. ऑल्सो यू कैन सी द रिक्रूटर कि ओके सपोजेडली मैकेंजी में ओपनिंग आई है, उसमें नीचे कभी कभार आता है इफ दे डोंट चूज दे मतलब दे कैन कि मतलब उसमें नहीं आता है कि किसने ये पोस्टिंग करी है, बट काफी बार जॉब पोस्ट के नीचे आता है कि कौन इसके लिए हायर कर रहा है, राइट. तो तुम उनको भी रीच आउट कर सकते हो डायरेक्टली. लाइक आई रिसेंटली मेड अ पोस्ट कि इवन इफ यू आर नॉट कनेक्टेड विद समवन, हाउ कैन यू मैसेज देम, right, without having LinkedIn premium. I understand college students it's quite expensive for a college student to pay 3,000 on a monthly basis, right? So this is basically, maybe you can say, a hack कि तुम बिना कनेक्शन के भी मैसेज कर सकते हो. तो नाउ बेसिकली यू हैव एक्सेस टू ईच एंड एवरीबडी, नो मैटर कौन है. लाइक यू कैन जस्ट मैसेज कोई भी बड़े से बड़े कंपनी का सीईओ और फाउंडर और हायरिंग मैनेजर्स को आप मैसेज कर सकते हो. आई थिंक एक्सेसिबिलिटी मेक्स बहुत हेल्पफुल हो जाती है फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स. इफ यू आर इन अ बिजनेस, राइट, if you're putting valuable content, leads aati hai. Like most of my leads come from LinkedIn, right? Because if your target audience, for example, my target audience is CEOs and founders, all of them are present on LinkedIn, right? So most of them reach out to me on LinkedIn because I put out valuable content. Usme engagement aata hai, and that is why my posts are shown to them and they reach out to me. Right. So it's a gold mine if you use it properly. Like I think everybody who is using any social media, like LinkedIn, they should use. It's not even an option right now. Like you should, only 1% of people post on LinkedIn and 99% people are consumers. These are the statistics for the present है गूगल पे. तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम यू स्टार्ट पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन. एंड बिकॉज आई थिंक आगे जा करके दिस 1% नंबर केवल बढ़ने वाला है, राइट. इट विल नॉट डिक्रीज एनी टाइम सून. सो इट्स स्टिल अर्ली ऑन. अभी वो है ना, ट्रेन पकड़ लो वरना वो फिर आगे निकल जाएगी. देन इट विल बी रियली हार्ड टू कैच व्हाट हैपेंड विद इंस्टाग्राम राइट नाउ, राइट. इट्स नॉट दैट इजी टू ग्रो. सो या. So, Didi, in the about section of your LinkedIn page, that you mainly guide other students, other like CEOs and all, you guide them in probably improving their personal brand and marketing them. So, could you mention some mistakes that you made during your project, in your projects or your internships? Probably some of the incidents you could share it with us that wherein you didn't know that how to react in this particular situation. Right. That where, so could you share some insights on that? श्योर. तो मैंने एक तो इस पर पूरा वीडियो बनाया है कि व्हाट वाज द मिस्टेक जो मैंने करी एंड व्हाट आर द सजेशंस जो लोग अब इंटर्नशिप करने के लिए जा रहे हैं. व्हाट आर द सजेशंस जो मैंने खुद से सीखे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से. आई हैव अपलोडेड इट ऑन माय चैनल. आई विल आल्सो प्रोवाइड द लिंक टू यू. बट स्टिल इफ आई हैव टू मेंशन एनी 2-3 पॉइंट्स, आई विल से वन ऑफ द मिस्टेक दैट आई डिड वाज नॉट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने Amazon में इंटर्नशिप करा था, राइट. सो I did maintain a documentation after 15-20 days, but starting में I thought कि ठीक है यार मेरे को याद रहेगा मैंने क्या काम करा है, right? But whenever you are going for an internship जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम्हें PPO चाहिए या this is something serious that you want to do आगे भी, always maintain your like per week का work कि तुमने इस week में ये करा, इस week में ये करा, इस week में ये करा. Because generally हर बड़ी कंपनी में एंड में एक रिव्यू होता है इंटर्न, राइट, कि आखिर तुमने करा क्या है. ठीक है, तुमने करा तो बहुत सारी चीजें होती है, बट एंड में जब 6 महीने या 2 महीने बाद पूछते हैं ना तो कुछ याद नहीं आता है कि यार मैंने करा क्या, कुछ अचीव ही नहीं करा. बट इफ यू हैव प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, तुम्हें वो देख देख के याद आता है कि ठीक है मैंने यहाँ पे ये करा था, मैं यहाँ पर अटका था, इससे मैंने ये सीखा. तो इट हेल्प्स अ लॉट एट द एंड. स्टार्ट में समझ नहीं आता है बट इट हेल्प्स अ लॉट. नेक्स्ट थिंग व्हाट आई वुड सजेस्ट इज स्पीक अप. मतलब मेरे को हमेशा लगता था कि यार मेरे को पता नहीं है कि पता नहीं ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, मेरे को तो इतना नॉलेज नहीं है, राइट. तो आई माइट साउंड डम. वैसा तो नहीं लगेगा कि यार ये क्या बोल रही है, इसको कुछ आता नहीं है. नो, अगर तुम एक इंटर्न हो, इवन यू आर अ न्यू जॉइनी, जस्ट स्पीक अप, पुट आउट व्हाट. आई एम नॉट सेइंग स्पीक अप जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग अप कि भाई बोलना है तो इसलिए बोल दो. बट इफ यू हैव समथिंग इन माइंड कि यार मुझे लगता है कि ये बेटर हो सकता है, मुझे लगता है यहाँ पे ये इंसान गलती कर रहा है, नो मैटर वो SD1 है, SD2 है, कोई और दूसरा है, राइट. वी ऑल आर ह्यूमंस, गलती कर सकते हैं. जस्ट पुट आउट योर पॉइंट ऑफ व्यू. डोंट शाय अवे कि मुझे अभी आता नहीं है तो मैं नहीं बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ, राइट. that adds a lot of ownership कि ठीक है आप एक तो अच्छे से सुन रहे हो what is happening and you have your own opinions. You are a leader, not a follower. कि किसी ने कुछ बोल दिया आपने आंख बंद करके बस करना चालू कर दिया. Even when you are given a project in an internship, उनसे पूछो कि यार ये प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट क्या होगा,
why am I even doing this? राइट मतलब मेरे को जब मैं खत्म कर दूंगा whom am I impacting? Ask as many questions. मेरा तो हमेशा से रहा है कि मेरे को कोई कुछ भी काम देता है मैं बहुत सारे सवाल करती हूँ. Sometimes it might irritate people, but at the end of the day it's helping me, and then it's also putting a good impact on the other person कि ठीक है I'm actually taking interest. If you will only agree to what the other person is saying, they'll just think that you're not curious enough या फिर you don't want to deep dive. So yeah, ask as many questions as possible. So these sometimes like people while they're doing internships or probably they're working. So when they join the company recent, like they join as a new intern or new joinee, so they have that like hesitation. Like, what if I ask some dumb or stupid question? They probably would lay off. Like they would think that how stupid I am to ask such a basic question. That some people have that hesitation. So because of that, they do not ask openly to their leads or probably so they hesitate to ask questions. So do you think like people should hesitate, or because they have that fear that what if the other person thinks that I'm so stupid to ask such a basic question? So Right. what people should do in that situation? Like, should they ask or should they probably search it online on some GPT or Google to find out what the solution to the problem is? Yeah, really good question, Saksham. So पहली बात तो if college students think कि lay off कर देंगे या कुछ कर देंगे, no, nothing of that sort happens. अगर तुम question पूछोगे तो मैं lay off तो नहीं करेंगे, right? Second thing is what people will think. प्लीज जस्ट ये सोचना बंद कर दो लोग क्या सोचेंगे, राइट? मतलब दिस इफ द डे यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट पीपल एंड जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ कि भाई मेरे को सीखना है, राइट? अब लोग क्या सोचेंगे, देन यू वोंट बी एबल टू प्रोसीड फर्दर. तुम्हें कोई भी डाउट आएगा, क्वेश्चन आएगा, तुम्हें पूछना तो पड़ेगा यार. अगर तुम यही सोच रहे होगे लोग क्या सोचेंगे, मैं नहीं पूछूंगा, लोग आगे निकल जाएंगे, आप पीछे छूट जाओगे, right? So just don't keep that mentality. And all these big companies, right? कोई भी company में whoever is a working professional, right? They started just like you. आप अभी एक इंटर्न हो, वो भी एक टाइम पे इंटर्न थे, देन वो भी एक टाइम पे न्यू ज्वाइनी थे. दे अंडरस्टैंड कि कितना प्रॉब्लम होता है व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू कंपनी और व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम अ कॉलेज टू अ कंप्लीट कॉर्पोरेट लाइफ, राइट? देयर इज टोटल पूरा शिफ्ट हो जाता है सब कुछ, राइट? सो दे अंडरस्टैंड, दे आर वेरी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स न्यू जॉइनीज और इंटर्न्स, राइट? तो दे विल हेल्प यू. मतलब इवन फॉर माय इंटरव्यूअर आई वुड सजेस्ट, लाइक अ लॉट ऑफ टाइम्स इंटरव्यू में लोगों को लगता है कि यार मैं क्वेश्चंस नहीं पूछूं या फिर मैं क्वेश्चंस पूछूंगा दे माइट थिंक दैट आई डोंट नो इट. बट नो, इफ यू आर आस्किंग द राइट क्वेश्चन, इंटरव्यूअर भी चाहता है तुमको सेलेक्ट करना, right? So if you're asking the right question, the interviewer will guide you to the right direction. Similarly, for a full time or an intern role, अगर तुम बहुत डम क्वेश्चन पूछ रहे हो, I will say don't ask it. अगर कुछ गूगल पे अवेलेबल है और तुमको लगता है कि मैं ये गूगल कर सकता हूँ, तो पहले गूगल कर लो यार, वरना लोगों को लगेगा कि यार ये तो इतनी सिंपल चीज थी एंड मतलब यू कुड हैव इजीली फाउंड इट ऑन गूगल, राइट? पहले गूगल कर लो, पहले अपने एंड से ट्राई कर लो. अगर नहीं मिल रहा है तुमको, डोंट स्पेंड मोर देन लाइक 2-3 आवर्स, बिकॉज इंटर्नशिप्स में क्या होता है ना, टाइम लिमिटेड होता है, राइट? यू हैव मे बी 2 और 6 मंथ्स. अगर आप 3-4 दिन केवल एक क्वेश्चन का आंसर करने में निकाल रहे हो, 2 महीने तो ऐसे निकल जाएंगे, राइट? पहले थोड़ा ट्राई कर लो, नहीं हो रहा है जाके किसी से पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो दीदी एक क्वेश्चन था कि जैसे एक वेब सीरीज मैंने देखी थी, आई थिंक इसका आई फॉरगॉट द नेम, बट उसमें क्या होता है कि ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ हिज जॉब इज गिवन अ टास्क प्रॉब्ली टू कोड समथिंग इन द सी लैंग्वेज, ओके. and he isn't well versed with the C language. So he copies the code from some online source or something and uses that in the probably the work his employer had given him to do. So and then the some crash, something happens in the back end of the company, and the person is now being blamed. So do you think that online should we copy or something from online sources, or should we rely on online sources? Because to the counter question to the previous question, like you told, like we could search Google for it or something. So what should a person do when he is not aware of this probably the equation or the problem at the moment at all? So Right. should he tell that he's not worthy of it, is probably not able to do it, and the person should give this task to somebody else? Because at the very first time he's probably joining a company, would it give a bad impression to the person, the person? राइट. तो वन थिंग सक्षम, आई विल टेल यू, कॉपी करना भी एक आर्ट होता है, टू बी ऑनेस्ट, राइट? एक मतलब कॉपी करने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा दिमाग चाहिए.
तो जैसे अब आई थिंक 3 इडियट्स सबने देखी होगी, तो कि वो बस दे दो, समझना नहीं है, बस पढ़ के कॉपी करना है और जाके बोल देना है, राइट? ऐसे कभी कॉपी नहीं करना है। ऑलवेज यू विल बी एबल टू कॉपी ओनली व्हेन यू नो समथिंग अबाउट दैट थिंग, राइट? मतलब जैसे कई लोग फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी का एग्जांपल ले लेते हैं, एआई आजकल काफी लोग बात कर रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं, एक प्रॉम्प्ट डाला चैट जीपीटी में, जो भी आता है माइंडलेसली बस कॉपी पेस्ट कर देंगे उधर जाकर के लिंक्डइन पे, राइट? नो, मतलब वो आपको गूगल या कुछ भी आपको पजल के पीसेस दे सकता है, राइट? पर आपको पूरी चीज, क्योंकि आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको कोड करना है, राइट? अब जैसे स्टैक ओवरफ्लो हो गया या फिर अ लॉट ऑफ आपको बाकी रिसोर्सेज मिल जाएंगे, आप उससे सीख सकते हो कि ठीक है ये ऐसे हो रहा है, बट ऐसे नहीं कर सकते हो कि आपने उधर जो लिखा है आपने बस कॉपी पेस्ट कर दिया। इट माइट नॉट इवन वर्क इन योर सिस्टम, राइट? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको वो सीखना है, एंड वॉट यू शुड डू इन दिस सिचुएशन, अगर आपको नहीं आता है आप उसको बताओ कि दिस इज समथिंग दैट आई डोंट नो। अगर वो आपको 1 दिन का टाइम दे रहा है, रिक्वेस्ट मोर टाइम कि मेरे को इसके लिए ज़्यादा टाइम दो। मेरे को मे बी अगर आप 1 दिन की जगह 3 दिन दोगे, मैं इसको सीख करके आपको करके दे दूँगा। दिस इज़ द राइट थिंग टू डू इंस्टेड ऑफ जस्ट कॉपी पेस्टिंग फ्रॉम समवेयर एल्स। आँख बंद करके कॉपी करना तो आई वुड नॉट सजेस्ट एनीबॉडी टू डू। उसको देखो, सीख लो कि ये कैसे होता है एंड देन डू इट। या। So you mentioned about your internships and the interview. So you have interned at Amazon, Geeks for Geeks, and various other companies. So how was like people think that it's a very big like procedure, a very big task to crack an interview. So could you share some insights or what how was the day of your interviews or interviewing for all these big companies? So what was the day like during those times when you were applying for all these companies? If you could give us a brief about it. Right, right. So let's start with the first one, Amazon. When I gave the interview से पहले भी there was a lot of process. There was resume, then there was online assessments, and then interview था. My interview got मतलब बहुत डिले हो गया था टू बी ऑनेस्ट। मतलब पहले मेरे को एक इंटरव्यू डेट मिली थी, फिर उसके बाद एक नेक्स्ट इंटरव्यू डेट मिली थी, फिर उसके बाद एक और इंटरव्यू डेट मिली थी बाद में, क्योंकि आई थिंक देयर वाज दिवाली एट दैट टाइम, आई डोंट नो 2 साल पहले की बात है। बट या लाइक मेरा 10 बजे इंटरव्यू था, 10 या 10:30 बजे आई वॉज इन फ्रंट ऑफ माई स्क्रीन, डोर लॉक्ड एट 9 o'clock, कि भाई कोई, एंड 9 से 10 बजे के बीच में आई वॉज जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माई लैपटॉप कि यार दिस इज द लास्ट थिंग। बिकॉज सक्षम टू बी ऑनेस्ट लास्ट 3 महीने मैंने कुछ नहीं करा था, आई वॉज ओनली डूइंग लीड कोड, नो वेब सीरीज, नो फोन, नथिंग एल्स। आई वॉज वेरी फोकस्ड कि यार ये तो करना ही करना है, अदरवाइज फिर वही है, होता है कि वीआईटी में 100 कंपनीज आएंगी, फिर से स्टार्ट करो प्रोसेस। मतलब मुझे मतलब 1 2 3 स्टेप कर लिया था, 4th स्टेप में कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी थी, राइट? सो आई वाज लाइक कोई रिस्क नहीं लेना है। सब कुछ प्रिपेयर करके 9 बजे ही बैठ गई थी। एंड देन द इंटरव्यूअर, वो तो एक अलग प्रोसेस है कि इंटरव्यू में मतलब उन्होंने 2 क्वेश्चंस पूछे थे मुझसे डीएसए के, एरे के क्वेश्चंस थे, डायनामिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन थे। कोई भी क्वेश्चन किसी भी इंटरव्यू में डायरेक्ट, जनरली डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके नहीं आता है। कभी कभार होता है कि आपको डायरेक्ट लीड कोड का क्वेश्चन पूछ देंगे, बट मेरे में यही था कि इट वाज अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन बट विद अ लिटिल बिट ऑफ ट्विस्ट। उधर बस आपको दिमाग लगाना होता है कि ये ट्विस्ट को कैसे सॉल्व करना है। इफ यू आर एबल टू डू दैट यू कैन क्रैक द इंटरव्यू इजीली। फिर बस मेरा इंटरव्यू चला था ऑलमोस्ट 1 डेढ़ घंटा। देन पोस्ट दैट आई वाज रियली नर्वस। हर इंटरव्यू के बाद एवरीबडी थिंक्स दैट दे हैव रूइंड द इंटरव्यू, सेलेक्ट नहीं होने वाला है। तो आई टोल्ड ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स कि यार नहीं होने वाला है, मेरा तो नहीं होने वाला है, आई डोंट थिंक आई हैव डन गुड इनफ। Then post like in my college, I think in college nahi, I think there itself after 1 month I think I got this thing, the confirmation that I have received the internship. And yeah, like I was mind blown. I was like, oh wow, what is this? What did just happen? And more than that I was happy about कि अब मुझे 4th year में internship के लिए नहीं बैठना पड़ेगा PIT में, पहले से हो गया है। तो yeah. So Didi, like what is like some of the skills like you have some skills like SEO copywriting. Could you explain what is the SEO copywriting in brief? राइट, सो एसईओ यू हैव टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल गूगल, राइट? तो जैसे आप कोई वर्ड सर्च कर रहे हो, मान लो मैंने वीआईटी सर्च करा, ठीक है? तो सबसे अब वीआईटी तो 100 लोगों ने या 1000 लोगों ने वीआईटी के बारे में बात करी है, राइट? सो गूगल हैज एन एल्गोरिदम कि
ऊपर क्या दिखाएगा, राइट? लाइक सबसे पहला आर्टिकल क्या आएगा, फिर सेकंड आर्टिकल क्या आएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. Similarly, when you are doing copywriting, right, so like you have to see कि whatever you are writing is also coming at the top when that person is searching about it. For example, if I search DSA, तो DSA जैसा मैंने आपको पहले बताया, there are thousands of people who have posted stuff about DSA, but whose profile will come on the top, जिनका content या कंटेंट जो भी उन्होंने लिखा है वो ऑप्टिमाइज्ड होगा. सिमिलरली फॉर ब्लॉग्स, राइट, लाइक किसका ब्लॉग सबसे ऊपर आएगा, मीडियम पे किसका ब्लॉग सबसे ऊपर आएगा. एंड ऑप्टिमाइजेशन, हाउ डज दैट हैपन? इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस. देयर आर लॉट ऑफ टूल्स. सेमरश इज समथिंग दैट आई यूज पर्सनली, बट लाइक यू हैव टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स कि फॉर एग्जाम्पल ये 5-6 कीवर्ड्स हैं जो आजकल बहुत चल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू गिव यू, मेरे पास मान लो एक क्लाइंट है हु इज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन फॉर एग्जाम्पल, तो मैं देखती हूँ कि what are people searching for this field, कि you know कि surgeon is the keyword, orthopedics is the keyword, healthcare is the keyword, medical is the keyword. क्या keyword है exactly, कौन से पोस्ट. फॉर एग्जाम्पल जैसे वन ऑफ द मेथड्स दैट आई यूज इज, जैसे मेरे को लिखना है somebody for orthopedic surgeon है, उनके लिए पोस्ट लिखना है, राइट? सो आई जस्ट सी what are the other people in the same field, कि of course और भी लोग होंगे in the same field who are writing. I do a lot of research and then see what are the hashtags that they are putting, right? Of course वो जो hashtags put कर रहे हैं, the people who are commenting, and all these hashtags आपको उन्हीं में देखना है जिनके at least 1000 या 2000 likes हैं on LinkedIn. Those are the viral hashtags, and then try using those hashtags in your post. Also लिंक्डइन के स्पेसिफिक सब कुछ बात कर रहे हैं, राइट? यहाँ पर लिंक्डइन पे एक सेक्शन होता है ऊपर वेर इन यू हैव टू पुट 5 hashtags. Like I don't know how many of 1 second, am I audible? Yeah, lagging in between, but now you're. ठीक है, तो लिंक्डइन पे एक ऑप्शन होता है ऊपर, या इफ यू टर्न ऑन योर क्रिएटर मोड यू कैन ऐड like 5 hashtags at the top, right? So LinkedIn algorithm will promote your post. अगर वो 5 hashtags में जो आपने लिखा है, राइट, वो आपके पोस्ट में स्प्रिंकल्ड है कहीं ना कहीं. फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जैसे लेट्स सी माई प्रोफाइल, राइट. This is something that not a lot of people know, but I think is really really important. And मतलब मैंने A/B टेस्ट करा है, it really works. For example, मैंने अपने प्रोफाइल पे डाला है marketing agency life, personal brand and marketing content, right? These are the 5 hashtags. तो अब इन वर्ड्स को मुझे अपने पोस्ट्स में स्प्रिंकल करना है कहीं ना कहीं, राइट? अगर मैं इन चीजों के बारे में लिख रही हूँ, लिंक्डइन विल प्रमोट योर पोस्ट. मैं कंप्लीटली ऑफ टॉपिक जा रही हूँ, लिंक्डइन विल सप्रेस दैट पोस्ट. Right. So whatever you're writing on LinkedIn, just make sure these 4-5 keywords जो भी आप डाल रहे हो, they are all over your post. So this is basically optimization. Apart from that, completing each and every section in the profile. LinkedIn में बहुत सारे sections होते हैं, जैसे featured section हो गया, आपके top posts ऊपर डालना. Then there is one section of articles. This is a really underrated section. लोग post नहीं करते हैं, but अगर आप optimize करके article डाल रहे हो, मतलब उससे प्रोफाइल काफी बूस्ट होती है, राइट? लाइक दिस इज समथिंग दैट इवन आई लर्नड रिसेंटली. Then there is one section in which you can add your certificates, your basically the courses that you have done. It is really important that you complete all those sections. Endorsements का section होता है. For example, maybe Saksham or Naman, you do podcasts, right? Or maybe you do content creation. So you could just write content creator and just ask people, or maybe people will automatically come on your profile and endorse you, right? So अब अगर कोई content creator search कर रहा है, right, तो एक बहुत high chance है कि आपका प्रोफाइल ऊपर आएगा, राइट? बिकॉज लिंक्डइन नोस कि ठीक है, आपको ये चीज के बारे में पता है, इसीलिए लोग आपको एंडोर्स कर रहे हैं, तो इसीलिए जो आपका कंटेंट है वो अच्छा होगा. एंडोर्समेंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट टू ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल. So you think that the hashtags are quite important? Like we should focus very. So Very should we stick to how many hashtags should we use? Like we should use, like some people try to use infinite number of hashtags. They have 20 or 30 hashtags in a single post. So Right. how many should it be apt to the problem, the question we are showing, or probably we are post what it is about, or should we also include some the ending tag related to the post, use them to make the post reach out to the wider set of audience? ठीक है, हैशटैग. सो
like most of the people neglect the power of hashtags. If you used correctly, they can just blow up your post. ठीक है, तो सबसे पहले तो LinkedIn पे 10-12 hashtags नहीं या 20-25 आपने बोला उतना बिल्कुल नहीं डालते हैं. It's not Instagram. There is a difference between these two platforms. लोग क्या करते हैं, उधर से कैप्शन कॉपी करते हैं, इधर पेस्ट कर देते हैं पूरा, राइट. लिंक्डइन पे मैक्सिमम 4 हैशटैग्स डालने चाहिए. उससे ज्यादा आप डालोगे इट विल पुट योर पोस्ट इन स्पैम. इफ यू वांट यू कैन A/B टेस्ट इट. मैंने करा है मल्टीपल टाइम्स. लाइक सेम पोस्ट आई पोस्टेड इट विद 3-4 हैशटैग्स, सेम पोस्ट आई पोस्टेड इट विद 15 हैशटैग्स, एंड ऑफ कोर्स 3-4 हैशटैग्स विद द सेम कंटेंट जो ऊपर डाला था, सेम पिक्चर. 3-4 हैशटैग्स जिसमें डाले थे सही हैशटैग्स, दैट गॉट मच बेटर व्यूज, राइट. लिंक्डइन themselves have put that कि 3-4 हैशटैग से ज्यादा आप डालोगे तो हम आपका पोस्ट स्पैम में डाल देंगे, आपका पोस्ट नहीं चलेगा. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट हैशटैग शुड यू यूज? मेरी सिंपल स्ट्रेटेजी है, आई यूज 2 हैशटैग्स दैट आर ट्रेंडिंग एंड रिलेटेड टू द पोस्ट. मतलब फॉर एग्जाम्पल सर्जन है. अब सर्जन इतना कॉमन हैशटैग है, राइट. मतलब बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में पोस्ट करा होगा. एंड 2 हैशटैग्स होते हैं जो इतने कॉमन नहीं है. मतलब दोज हैव लाइक मे बी 20,000-25,000 फॉलोअर ओनली, एंड 2 हैशटैग्स विच हैव लाइक a lot of followers. तो मेरा हमेशा ये 2-2 rule होता है, 2 hashtags of this, 2 hashtags of that. There is one more thing that you can make your personal hashtags. For example, maybe if you are your channel name is Byte Life, so you can just write Byte Life as a hashtag. अगर तुम लोग लिंक्डइन पे सर्च कर लो कि Byte Life exist करता है कि नहीं करता है ऑलरेडी, या make your unique hashtag, right? So people will start following that. वो भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है, but that's a really time taking process. उसमें basically तुम अपने audience build कर रहे हो from scratch, but those will be your loyal audience who are following you for your content. All these big creators, right, they have their own hashtags. उनके नाम से उनका hashtag होता है, या फिर some other जो उनकी कंपनी का नाम है वो hashtag होता है. So you can start your own hashtag as well, yeah, and ask people to follow it. Riddhi, you are also a content creator, video creator, and you do brand management and marketing for various brands. So, did you start as a freelancer in this field initially, and when did you start? Yeah. So I generally don't do brand management. I do people management. Like there's a difference, right? For example, I Yes. manage people's LinkedIn profile, right? For example, there is some big founder, yeah, there's some big CEO जिसके पास टाइम नहीं है LinkedIn पे कंटेंट पोस्ट करने का, बट एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ लिंक्डइन कि भाई लिंक्डइन से बहुत अच्छे खासे लीड्स आते हैं, राइट. इट इज मेकिंग देम बिजनेस. LinkedIn से they are getting that much of business, they are getting connections, they want to post it, but उनके पास time नहीं है. So what I do is I do end-to-end management of their LinkedIn, from content writing to posting to commenting, everything is what I manage. Brand management थोड़ा different होता है, that is for a company. Company. Right. ठीक है. What was your second question? Sorry. This was the question only, that how to optimize this thing. How do you do this? That's what I think. With it. So you also freelance as a video creator for Geeks for Geeks. Yeah. So and you worked as a software development intern at Amazon. So these are quite 2 different ends of the spectrum fields. So how do you toggle between these 2 fields? Right. So when I did my internship, at that time I was not doing internship. मतलब ऐसा नहीं था कि दोनों internship side by side चल रहे थे. Like I think I did Geeks internship before I interned at Amazon. Okay. And why I did it was because मैंने अपना पहले YouTube चैनल स्टार्ट करा, and then I fell in love with content creation. I was like ठीक है यार, content creation में बहुत मजा आ रहा है. And Geeks for Geeks is one website जिसने मेरी बहुत हेल्प करी है पर्सनली, फ्रॉम कि मतलब कैसे कोड करना है या फिर एनी टॉपिक. मतलब सबसे ऊपर Geeks for Geeks ही आता है. आई थिंक नाउ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, यू वुड नो इट. तो दैट वाज वन कंपनी that I really related to कि यार इसने मेरी हेल्प करी है, I want to add value to them. And then it was content creation, right? I was like, what better than that? मेरे को मजा आती है. And they gave me a chance to talk to people from various industries. For example, I got a chance to talk to the CTO of Geeks for Geeks. Then they used to invite a lot of people. जैसे कीर्ति पुरस्वानी को they invited. Then I think they invited what this person girl's name is, some Gangwani, who is from VIT only.
So I got a chance to work. Basically, a lot of people that I looked up to, they used to invite and they used to ask me कि ठीक है अब इनसे बात करने हैं, questions पूछने हैं. And those were all technical questions, right? And because I was an engineering student, I of course knew all that stuff. So it was like a discussion between me and them, right? Because मेरे को बहुत ज़्यादा background knowledge थी, right? And I think that was because I loved Geeks for Geeks as a platform, and because I loved content creation and YouTube. So that is why I did it. I did it for almost a year, I think. Almost 11 months मैं Geeks for Geeks में थी. Right now also अगर आप देखोगे 1 साल 2 साल पुराना content, you'll find a lot of videos of mine. And those were all live videos. Like मेरी हमेशा videos ना recorded होती थी. तो एक दिन उन्होंने ऐसा बोला कि आपको वीडियो बनानी है. मैंने बोला ठीक है. तो मैं जाके बैठ गई उधर. And there was a CTO of Geeks for Geeks. उन्होंने बोला ठीक है अब आप एक काम करो इनसे questions पूछो. And he'll answer. मैंने बोला ठीक है. And then they were like just click on the live button. I was like what? लाइव जाना है यूट्यूब पे. एंड देयर उनके सब्सक्राइबर्स उनके मेन यूट्यूब चैनल पे हम लोग आते थे. ठीक है. आई थिंक दे हैव क्लोज टू अराउंड कितने हैं 500 के 600 के तो थे सब्सक्राइबर्स तब. मुझे अच्छे से याद नहीं है बट अराउंड 1 year बैक उतने थे. आई वाज लाइक अच्छा लाइव जाना है एंड इतने सारे लोगों के सामने और वो भी सीटीओ ऑफ गीक्स फॉर गीक्स से मुझे क्वेश्चंस पूछने हैं. एंड मैंने कहा यार ये तो आपने बताया नहीं. तो मुझे लगा इट इज जस्ट लाइक अ मॉक और या फिर रिकॉर्डेड होगा वो एडिट करके डालेंगे. उन्होंने बोला नहीं लाइव होगा. आई वाज लाइक और 4:55 4:50 कुछ हो रहा था. 5 बजे था हमारा वेबिनार. आई वाज लाइक यार अब तो कुछ नहीं हो सकता है मुस्कान. नाउ यू हैव टू डू इट अदरवाइज कुछ नहीं होगा. तो आई जस्ट डिड इट. मतलब ठीक है मेरे पास अब आ गया. कोई ऑप्शन नहीं था करना पड़ा. तो फ्रॉम देयर ऑल्सो वो लाइव वाला फियर भी खत्म हो गया कि लाइव वीडियोज नहीं कर सकते हैं. राइट. एंड देन आई स्टार्टेड एंजॉइंग इट. ठीक है. फिर मैं ना उसको एज अ इंटरव्यू या फिर ऐसा नहीं देखती थी कि मेरे को काम करना है. इट वॉज लाइक कि मेरे को हर हफ्ते या हर दिन एक इंसान के साथ डिस्कशन करना है जिससे मैं कुछ सीख रही हूँ. राइट. ऑफ कोर्स दे आर सो उनको इतना कुछ आता है. राइट. लाइक दे हैव बिल्ड सो बिग कंपनीज या फिर दे हैव डन सो मच इन देयर लाइफ. बिग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स. राइट. उन्होंने इतना कुछ करा है मेरे को सीखने को ही मिल रहा है. व्हाट बेटर देन दैट. सो या that was Geeks for Geeks. It was a great experience, I think. Yeah. So Didi, like most of the people in the first year, second year, they have a problem of introvertedness. Like they can't talk to other people. And मतलब CEOs और मतलब बड़ी personalities की तो बात छोड़ी तो they can't even talk to their college mates. Right. So and like this is a very essential component, like talking to people and probably building connections. Then only you can move forward with your life. So how did even in interviews, if you are not able to explain what the skills you have, but you can't explain them in the Right. interview, so they won't be able to get to know you better. So what are some tips like we could use like to improve our people skills or communication skills, like how to give interviews, like is the basic question. Like how can, like, should we give club interviews more? Should we probably give more internship interviews? We should start early and give more interviews so that we have probably a nick of it, or probably we have a experience how to give basic interviews. So interviews you're asking of companies कैसे देने हैं, like when you can't express yourself. Yeah, but how should we start this journey? How should like if we'll give interviews, then only probably because some people have that problem of introvertedness or they can't open up to people easily. Right. So how do people like these, like they go about things, like how should they proceed? Makes sense. इंटरव्यूज के लिए सबसे पहले तो इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट राइट तो वीआईटी में आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर देयर इन वीआईटी राइट नाउ आर क्लोज 20 Yeah, for the second year we have around 10,000 and third year is even more. Around 20,000-25,000 people. So first of all, if you are a VITian, it's really tough for you that you'll not talk to people because इतने सारे लोग हैं राइट. तो you will eventually talk to मतलब लोगों से बात तो करनी ही पड़ेगी. अगर आप बात नहीं कर रहे हो VIT में you will be left behind. ठीक है. Because there are so many things happening right, whether it is for a college assignment, whether it is for a DA, whether it is something happening. लोगों से बात तो करनी पड़ेगी यार. मतलब if you are an introvert, just try थोड़ा extra एफर्ट डालो एंड बात करो जाकर. अगर तुम्हें लगता है कि कमरे में बस बंद रह के पढ़ाई करके तुम यू माइट गेट अ 9 CGPA और 9.8 CGPA पॉइंटर बन जाओगे बट नहीं दैट विल नॉट हेल्प यू आगे जाकर के. राइट. सो
बात करने की तो आदत डाल लो। सेकंड थिंग वाज़ इंटरव्यू राइट दैट यू आस्क, रियली गुड क्वेश्चन। तो क्या करो, व्हाट आई डिड वाज़, क्योंकि मेरे को भी ना बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती थी इनिशियली, मतलब आई यूज्ड टू फंबल अ लॉट, मतलब मैं बीच-बीच में एकदम से रुक जाती थी। मेरे को समझ नहीं आता था तो मैं आगे क्या बोलूँ? आई स्टार्टेड गिविंग मॉक इंटरव्यूज़। मतलब फॉर एग्जाम्पल मॉक इंटरव्यूज मतलब क्या है कि बेसिकली मी एंड सक्षम बोथ वांट टू गिव एन इंटरव्यू फॉर अमेजोन। आई विल बी लाइक कि चलो मैं यार मैं सक्षम तुम्हारा इंटरव्यू ले लेती हूँ 1 घंटे का। आई विल कम अप विद, हमें फॉर्मेट पता होता है जनरली इंटर हर कंपनी का, राइट? अगर आप अच्छे से रिसर्च करो आपको मिल जाएगा कि अमेजोन में क्या फॉर्मेट होता है या माइक्रोसॉफ्ट में क्या फॉर्मेट होता है, मैकिंजी में क्या फॉर्मेट होता है। आई विल आस्क यू ऑल द क्वेश्चंस एंड सिमिलरली सक्षम विल डू द सेम थिंग फॉर मी कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे एंड दैट इज हाउ, मतलब मैंने जब अपना फाइनल अमेजोन का इंटरव्यू दिया था, लोगों को लगता है फाइनली कि चलो मतलब एक इंटरव्यू क्रैक कर लिया, बट उससे पहले आई हैव गिवन एटलीस्ट 50 मॉक इंटरव्यूज बिफोर सिटिंग फॉर अमेजोन इंटरव्यू। एंड आई रिमेंबर द फर्स्ट या सेकंड इंटरव्यू जो मैंने दिया था, सो देयर वाज दिस पर्सन, पता नहीं मतलब, और लोग कैसे फाइंड करें पहले तो इंटरव्यू के लिए, आप सिंपल टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ, आपको बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे, मॉक इंटरव्यूज और समथिंग लाइक दैट मिल जाएगा आराम से, इफ यू विल फाइंड इट। वहां पे बहुत सारे लोग रेडी हो जाएंगे इंटरव्यू लेने के लिए, आप एक दूसरे का, ऑफ कोर्स यू आर हेल्पिंग ईच अदर, राइट? तो आई गेव दिस इंटरव्यू टू दिस वन गर्ल, I think she was an SD only at Amazon. I don't know who was she, but उसने बोला यार ऐसे इंटरव्यू दोगे तो तुम्हारा नहीं होने वाला है Amazon में। तो which was really good. I really messed up the interview. मतलब मैं कुछ भी आंसर नहीं कर पा रही थी। The question that she asked, I knew that question, but because मेरे को इंटरव्यूज का फेयर था, लोगों से मैं बात नहीं कर पाती थी, I could not answer that. वही क्वेश्चन मेरे को कोई देता कि लीड कोड पे लिख दो, I would have written it. But because मैं बात नहीं कर पाती थी, I really messed up the whole thing. So then I started giving more and more interviews. I worked on my introduction. I worked on कि मैं बताऊं कैसे क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल एक कोड करना है क्वेश्चन और समझाना किसी को, वो दो आर टू डिफरेंट थिंग्स, राइट? आप खुद को तो समझा लोगे बट दूसरे को समझाना इज एन आर्ट, कि उसको एक एक चीज समझ में आए, और वही आपको इंटरव्यू में करना होता है। फॉर एग्जाम्पल एक कडेन्स एल्गोरिथम है, मेरे को आता है, बट मेरे को इंटरव्यूअर को भी आता है, बट मेरे को वो इंटरव्यूअर को ऐसे समझाना है कि उसको नहीं आता है, और मैं पूरा स्टेप वाइज समझा रही हूँ, राइट? दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड वो आपको केवल मॉक इंटरव्यूज देकर ही आएगा। मतलब काफी हेल्प करता है। आप अपने फ्रेंड्स को पकड़ लो यार, थर्ड फोर्थ ईयर में सभी को इंटरव्यूज देने होते हैं। एंड नाउ आई डोंट नो अगर इन पर्सन इंटरव्यूज हो रहे हैं या वर्चुअल इंटरव्यूज हो रहे हैं, बट मेरे टाइम पे पूरा वर्चुअल इंटरव्यूज थे, तो आई यूज्ड टू। So Didi, like most of the people, like you also would have struggled with like rejections. Like interview, पहला interview तो एकदम crack नहीं हो जाता. या Sometimes like we have to face, like some people have to face rejections for even 3 or 4 months. They या can't crack a interview. So what should they probably, क्योंकि उस time में फिर वो काफी ज्यादा वो फ्रस्ट्रेशन वगैरह आता है कि आई हैव द स्किल्स, आई हैव द स्किल सेट टू प्रॉब्ली सक्सीड, बट प्रॉब्ली आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, आई एम नॉट एबल टू गिव इंटरव्यूज। सो मतलब हाउ टू स्टे calm and probably how to gather up the courage to probably give more interviews and probably come up again with probably betterment, or probably give some check what mistakes we have been making in our profile or something. What should we do during that time when we're facing rejections and all? तो सी रिजेक्शंस आर कॉमन, मतलब केवल 3-4 नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा भी मिले। बिकॉज़ मेरे को याद है व्हेन आई वाज़ इन कॉलेज, राइट? तो बिकॉज़ मेरा ठीक है, मेरा सब कुछ हो चुका था, आई डिड नॉट यूज्ड टू गो फॉर इंटरव्यूज़, बट मैं देखती थी दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन माय फ्रेंड्स और इवन माय रूममेट्स वो इंटरव्यू दे कर के आते थे, एंड देन लिस्ट आती थी, कभी-कभार नाम नहीं होता था लिस्ट में, राइट? दैट डिसअपॉइंटमेंट इज़ देयर, आपको लगेगा फॉर गुड 1-2 दिन लगेगा कि यार, कभी-कभार ऐसे इंटरव्यूज़ होते हैं आपको लगता है यार सब कुछ सही करा फिर भी नहीं हुआ, एंड आपको पता ही नहीं होता क्यों नहीं हुआ, राइट? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक फीडबैक फ्रॉम द इंटरव्यूअर कि आपने क्यों नहीं लिया मुझे, और ऐसा नहीं है कि वो आपको फीडबैक नहीं देंगे। इफ यू मेल देम कि मेरे को फीडबैक दो, दे विल गिव यू फीडबैक, राइट? आप एक बार फॉलो अप करो, 2 बार फॉलो अप करो, वो देंगे आपको। वो आपको बताएँगे कि आपका यहाँ पे गड़बड़ था, एंड जस्ट ट्राई टू इम्प्रूव दैट थिंग। बेसिकली डोंट मेक द सेम मिस्टेक इन 10 इंटरव्यूज। आपने पहले इंटरव्यू में एक गलती करी, आपने सीख लिया। सेकंड इंटरव्यू में नई गलती करो, प्लीज दोबारा फर्स्ट इंटरव्यू वाली गलती मत करो, राइट? थर्ड में फिर से एक नई गलती कर लो, बट पहले 2 वाली गलती मत करो, राइट? फिर 6th और 7th इंटरव्यू तक
पॉसिबल ही नहीं है कि आपका नहीं होगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है कि वो इंटरव्यू में क्या पूछा जा रहा है, दैट इज़ ऑफ कोर्स अ प्रीरेक्विजिट कि आपको एटलीस्ट अगर डीएसए का है तो आपको डीएसए तो आनी चाहिए, राइट? बाकी कम्युनिकेशन स्किल्स में कुछ इश्यू है या आप समझा नहीं पा रहे हो, आपने एंड में क्वेश्चन नहीं पूछा उनसे, राइट? अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल आर लाइक ठीक है हमें कुछ नहीं पूछना है, व्हिच इज़ अगेन रॉन्ग। तो जस्ट टेक फीडबैक फ्रॉम योर फ्रेंड्स एज़ वेल एज़ फ्रॉम द इंटरव्यूअर इज़ रियली इम्पोर्टेंट। उनको एक मेल कर दो, हर कंपनी आपको देगी फीडबैक। So Didi, today, like some people try to like make different resumes for various companies. Like they think that that is a better approach. Like probably the resume for Google should be different for resume for BCG or McKinsey or some other companies. So should we make a resume different resumes for different companies? Should that be our approach, or should we have a generic resume for all the companies? या रियली गुड क्वेश्चन। मतलब ऑफ कोर्स डिफरेंट रिज्यूमेस होना चाहिए अलग अलग कंपनीज का, बिकॉज हो सकता है बेन एक पर्टिकुलर रोल के लिए आए और माइक्रोसॉफ्ट एक पर्टिकुलर रोल के लिए आए, राइट? तो और हो सकता है आपको वो दोनों आते हो, बट आपने एक रेज्यूमे बनाया माइक्रोसॉफ्ट के लिए, अब आप वो बेन में डाल रहे हो तो वो तो ऑफ कोर्स रिजेक्ट करेगा, राइट? तो ऑफ कोर्स देयर शुड बी डिफरेंट रेज्यूमेस फॉर डिफरेंट रोल्स, राइट? जैसे आपने एसडी का एक रेज्यूमे बना लिया, बट हो सकता है आपको डेटा साइंस भी आती हो, तो आपने डेटा साइंस का एक रिज्यूमे बना लिया। हो सकता है आपको कंटेंट राइटिंग भी आती हो, तो आपने एक कंटेंट राइटिंग का रिज्यूमे बना लिया। फॉर डिफरेंट रोल्स आप डिफरेंट रिज्यूमे बनाओ। एंड जैसे आप मान लो 10 कंपनीज में एसडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसमें भी ना काफ़ी बार चेंजेस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो अमेज़न में आपको जावा चाहिए, दे नीड समबडी जिसको जावा आती हो, एंड माइक्रोसॉफ्ट में उनको चाहिए जिसको मे बी पाइथन आती हो, राइट? तो आपके रेज्यूमे में जस्ट मेक श्योर कि उनको जो चीज़ चाहिए, राइट, आप वो तो डालो। लाइक एक हैक बताती हूँ, सब व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मेरे को जो भी चाहिए थी कंपनी की, मेरे को इस कंपनी में जाना है, आई यूज्ड टू गो टू देयर रिक्वायरमेंट सेक्शन होता है ना एक, कि उनको व्हाट आर दे लुकिंग फॉर, जस्ट सी कि आपने उसमें क्या-क्या काम करके रखा और वो सब डाल दो अपने रिज्यूमे में। बेसिकली उनको जो चाहिए आप वो अपने रिज्यूमे में डाल दो, समझ रहे हो? दैट डज़ नॉट मीन लाइंग इन द रिज्यूमे, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको जावा नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है, उन्होंने माँगी है जावा, तो डोंट पुट इट कि मतलब मेरे को जावा में भी मैंने कुछ-कुछ करा है, या फेक प्रोजेक्ट्स मत डालो। इफ यू हैव टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैकेंजी में चाहिए, राइट? आप देखो कि एक XYZ रोल के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स है। आपके पास 1 साल है, आप वो 1 साल उन रिक्वायरमेंट्स पे काम करो एंड देन अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर रोल। तो वो जो रिक्वायरमेंट सेक्शन होता है वो बेसिकली आपके रिज्यूमे में होना चाहिए, राइट? So तो they like या some people like try to fill up their LinkedIn profile with various certifications. Like कुछ भी मिल रहा है वो सर्टिफिकेट इकट्ठे करने के लिए they're trying to do as many as courses as possible. Like free courses LinkedIn provide करता है, Google provide करता है, और भी राइट, वेरियस वेबसाइट्स है जो प्रोवाइड करती है। तो वो बस अपना प्रोफाइल, उनको लगता है कि बिल्डिंग अप, दे आर बिल्डिंग अप देयर प्रोफाइल बाय प्रॉब्ली getting so many certificates. So do you think that is important to get certificates and licenses to probably build your profile or for the betterment of your profile? राइट। टेल मी वन थिंग कि अच्छा ठीक है आपने रिज्यूमे तो डाल दिया, इज़ इट हेल्पिंग देम इन एनी वे? मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कोर्सेरा में फ्री कुछ सर्टिफिकेशन है। Uh, so हाँ, my like roommate, he's probably he I like after 2 or 3 days I asked him, so he's telling me like he's doing this course and that course, MATLAB का course कर रहा हूँ आज IIT Bomb. So he thinks like probably के अगर I'll have so many certifications, so if anyone would view my profile, so they will get to know that I have so much experience in this field. Probably he's not even aware, or probably he doesn't have that skill set of that field, but just to fill up his profile, he's getting up all the certifications. And even if like he has the skill, do you think it is mandatory to get so many certifications to prove your skill? See, certifications if you are actually learning something, right? For example, जैसे मान लो मैं कंटेंट राइटिंग का एक सर्टिफिकेशन ले लूँ, जिसमें मैंने एक्चुअली सीखा है, एग्ज़ाम दिया है, देन इट्स द बेस्ट। बट व्हाट कॉलेज स्टूडेंट्स डू इज़ कि वो कोर्सेरा पे जाएँगे एंड इट्स रियली ईज़ी टू गेट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम कोर्सेरा, राइट? मतलब एक दिन में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कोर्सेरा पे। दे विल जस्ट गैदर 10-15 सर्टिफिकेशंस एंड दे विल पुट इट ऑन देयर लिंक्डइन। वो हेल्प नहीं करेगा आपको।
if you are actually learning something from that, and if it's a really good certification, मतलब like जैसे for example AWS के certifications हो गए, they're really hard to get, मतलब उसमें आपको proper monitor करेंगे, आपका exam वगैरह भी monitored होता है, then it does help. मतलब I'm not saying certifications are मतलब totally बेकार, कुछ भी help नहीं करेंगे, बट यू शुड लर्न समथिंग आउट ऑफ इट, राइट? मतलब अगर वो कुछ सिखा रहे हैं तो आपको वो आना चाहिए, देन ओनली इट विल हेल्प। अदरवाइज आप, मतलब मैंने ऐसे भी देखा है लोगों के प्रोफाइल में 100 सर्टिफिकेशंस है, दैट विल नॉट हेल्प। केवल आपको उधर सर्टिफिकेट ऐड करने से कुछ नहीं होगा। इवन मतलब ये भी होता है कि अगर मैं किसी की प्रोफाइल पे देखती हूँ कि 100 सर्टिफिकेट्स है, तो मेरे को लगता है कि भाई इसको 100 में से कुछ भी नहीं आता है, राइट? इफ देर इज ओनली 2-3 सर्टिफिकेशंस ऑफ वन फील्ड, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू डू समथिंग मे बी इन मार्केटिंग, तो आप मार्केटिंग के 3-4 सर्टिफिकेशंस करो, राइट? ऐसे मत करो कि आप एक दिन एक्स कर रहे हो, एक दिन वाई कर रहे हो, एक दिन जेड कर रहे हो एंड सब चीजों के सर्टिफिकेशंस है, तो आपकी प्रोफिशिएंसी तो मतलब किसी में नहीं है, राइट? इट्स जस्ट लाइक somebody who is everywhere is nowhere, राइट? सो पिक अ नीश कि मेरे को ये करना है, आप सर्टिफिकेशन ले लो, इट्स अ गुड थिंग, बट लर्न समथिंग आउट ऑफ दैट। मतलब उसको केवल खत्म करने के लिए, एक सर्टिफिकेट लेने के लिए मत लो, राइट? So, Didi, other than this, all the academics and the extracurriculars you were part of, so what you used to do, like to have fun or probably to chill? Did you, which all club were you part of in VIT? Like, which all clubs did you join? Right. So firstly, it's a really wrong question to ask for me because I am a COVID student. मेरा most of the time, Sad. मेरा most of the time COVID में निकला है, but like it's good or bad since a lot of पढ़ाई वाला काम भी COVID में हो गया था. But yeah, first and fourth year, what I used to do is like पहले साल में तो I did not have a lot of friends, to be honest. मतलब I had a group of 3-4 people. उन्हीं के अराउंड में रहती थी हमेशा, बिकॉज आई वॉज अ वेरी बिग इंट्रोवर्ट, बात नहीं करने आते थे लोगों से, ठीक है? तो हमेशा उन्हीं के अराउंड रहना है, कहीं जाना भी है तो केवल कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल से ही बात करनी है। क्लास में भी अ लॉट ऑफ टाइम्स आई रिमेंबर सिटिंग अलोन इन अ क्लास, बट देन वीआईटी में बात करनी पड़ती है, सो आई यूज्ड टू टॉक। बट देन मतलब वीआईटी में मोरल है ज्यादा कुछ है नहीं करने के लिए, टू बी ऑनेस्ट। हमारा फेवरेट तारा माँ, पीवीआर, या फिर अभी तो बहुत सारी चीजें खुल गए, टू बी ऑनेस्ट, राइट? बट मतलब यही था यार। मतलब आई डोंट रिमेम्बर कि वीआईटी में हमने कुछ बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड कुछ कर दिया हो, क्योंकि केवल 2 ही साल थे तो, और 2.5 years तो मोस्टली इट वॉज ब्लर इन कोविड घर पे। सो या दैट वाज। So, how much weightage should people give to CGPA? Like, या सॉरी, yeah, सीजीपीए। like some people think like probably what I have heard from my seniors in this year, like they're saying that CGPA is the most important thing that you have to like you'll have. So you have to focus. Like people are saying, they should join clubs, you should do all the extracurriculars. They're saying that all of this is not mandatory. The first and the foremost thing is that you should focus on your CGPA and Right. try to maintain a decent CGPA, like probably over probably over 8.5 or 9. So, Mhm. what's your take on that? ठीक है, I think I missed also one of your question, that what was the clubs that I was a part of. Yeah. So in my first year, I was a part of an NGO named as Youth Red Cross. Then I was a part of Courtship VIT. Then I was a part of Innovate IT. I think यही थे clubs. There was I think some literary club also, but then उसमें मैंने कुछ ज़्यादा नहीं करा था. And then eventually मैंने केवल एक club अपने साथ रखा था, बाकी सारे हटा दिए थे. That was Courtship VIT, right? Because उसी में I used to contribute more, and then I learned a lot from that club and from the people who were there in the club, right? Like उधर से मेरे को बहुत inspiration मिलती थी. That is why I will suggest everyone who is there in VIT to टेक पार्ट इन वन गुड टेक्निकल क्लब। मतलब लो ही लो, बिकॉज उधर मेरे को लोग दिखते थे कि यार ये लोग ये कर रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, यार मेरे को तो ये नहीं आता, वो नहीं आता। तो आई यूज्ड टू स्टार्ट लर्निंग। मतलब वो आता था ना इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की, यार लोग तो इतना सारा कर रहे हैं। लर्न अ लॉट। एंड देन व्हाट वाज योर सेकंड क्वेश्चन कि Yes, सीजीपीए। CGPA. तो जो भी बता रहे हैं सीजीपीए इम्पोर्टेंट इज 100% करेक्ट। मतलब लोग बोलते हैं ना कि बस, मेरे को काफी सारे मेरे सीनियर्स ने बोलते हैं कि बस 8 के ऊपर रख लो चलेगा। नो, वीआईटी में इफ यू वांट गुड प्लेसमेंट्स तो सीजीपीए तो इम्पोर्टेंट है, एंड नॉट जस्ट 8 के ऊपर, यू शुड हैव इट 9 के ऊपर, आई वुड सजेस्ट। और किसी भी हालत में 8.5 के नीचे जाना तो बिल्कुल भी नहीं।
राइट मतलब बाय द एंड ऑफ 4th ईयर आपका CGPA 8.5 के ऊपर तो होना ही चाहिए मिनिमम। वाई इज इट इम्पोर्टेंट आई टेल यू, बिकॉज प्लेसमेंट तो देखो सबका हो जाता है, ऐसा नहीं है प्लेसमेंट नहीं होगा। दिस वुड बी अ लाइक कि अगर आपका 8 CGP है तो आपका प्लेसमेंट कहीं नहीं होगा, आपका प्लेसमेंट देर में होगा, राइट। बिकॉज VIT में क्या होता है ना, प्रायोरिटी देते हैं जिनका CGPA बेटर होता है। ऑफ कोर्स वो लोग अगर किसी ने उनके एकेडमिक्स में अच्छा करा है और उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ और किसी ने कम अच्छा करा उनका हो गया, दैट विल बी अ बैड इंप्रेशन टू देम, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे योर क्लास जिसमें 100 बच्चे हैं, उन्होंने मे बी एक माइक्रोसॉफ्ट का मे बी इंटरव्यू दिया, 2 क्वेश्चंस थे, सबने सॉल्व कर लिए 2 क्वेश्चंस। नाउ हाउ टू फिल्टर आउट, बिकॉज क्वेश्चन तो सबने सॉल्व कर लिए, नाउ दे विल फिल्टर आउट ऑन CGPA कि ठीक है चलो इसने सॉल्व करा बट इसकी CGPA 8.5 थी, इसने सॉल्व करा बट इसकी CGPA 9 थी, तो चलो 9 वाले को हम लोग आगे पास आउट कर देते हैं, राइट। तो दिस इज हाउ CGPA इज इम्पोर्टेंट, मतलब आपका प्लेसमेंट जल्दी हो जाएगा बेसिकली, राइट। एंड मतलब इट विल बी अ स्मूथ प्रोसेस। CGPA कम है तो काफी बार लोगों को लगता है कि यार मैंने भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करे थे, उसने भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करे थे, मेरा नहीं हुआ उसका हो गया, राइट। इट इज बिकॉज आप अपना CGPA देख लो, कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा आप दोनों की CGPA में, तो दैट इज ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट। बाकी तो मुझे नहीं लगता CGPA का कोई और, ऑफ कोर्स अटेंडेंस होता है VIT में, मैंने उसका फर्स्ट ईयर में फायदा उठाया था, फिर सेकंड ईयर में मेरी CGPA कम हो गई थी, फिर थर्ड मेरा हमेशा ऑल्टरनेट रहता था, एक बार 9 पॉइंटर, देन मेरा 8.8 8.9 पे अटक जाता था, देन 9 पॉइंटर। सो अटेंडेंस इज अ रियली ग्रेट थिंग आई थिंक। अगर 9 ले आओ यार, पूरा सेमेस्टर चिल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई डोंट थिंक VIT में किसी को भी कॉलेज जाने का इतना ज्यादा मन करता है इतनी धूप में वहां पर। तो या आई थिंक दैट्स अ ग्रेट एडवांटेज ऑफ गेटिंग अ गुड CGPA above 9. So, Didi, you were also from your profile, I could see that you were outreach head of the Coach Chef Club as well. So, do Yeah. you think like the becoming a head or a lead of a club helped you with some management or leadership skills which were required and which help you right now while you're working as a professional in various companies? राइट। सो टू बी ऑनेस्ट मतलब केवल एक पोजीशन मैटर नहीं करता है कि किस पोजीशन के, मान लो मैं आउटरीच, उस टाइम पे बहुत मैटर करता था कि अच्छा आप आउटरीच हेड हो या आप एडिटोरियल हेड हो या आप XYZ हेड हो। कॉलेज में आई यूज्ड टू थिंक कि यार यही है, अगर मैं मतलब मैं किसी हेड बन गई क्लब का तो पता नहीं मैं क्या ही क्या तोड़ दिया है मैंने। बट नाउ आई अंडरस्टैंड इट्स गुड कि आप किसी चीज के लिए यू आर वर्किंग हार्ड फॉर इट, बट in a long run it will not really matter. Of course it's the people, it's what you learn will matter. उस पोजीशन पे रह के या फिर उस नेटवर्क में रह के आपने क्या सीखा वो मैटर करता है, ये नहीं मैटर करता है यार कि आपकी उस टाइम पे पोस्ट क्या थी, राइट। बट उस टाइम पे रिमेम्बर कि यार बहुत ज्यादा आई वाज वेरी वो कि मेरे को ये हेड बनना है वो हेड बनना है। एंड देन ऑफ कोर्स इन कॉलेज मतलब लगता है कि एवरीबडी इज, सब लोग किसी ना किसी क्लब में कोई ना कोई हेड बन रहे हैं, मेरे को भी बनना है। सो या बट फॉर लॉन्ग रन आई डोंट थिंक इट्स रियली दैट पोजीशन दैट मैटर्स। मतलब So, मेरे को पता भी नहीं है मेरे किसी रेज्यूमे में कहीं पे भी इट्स नॉट इवन मेंशन्ड दैट। या I think we're done with all the questions. Thank you, Didi. Thank you so much for joining us and sharing your valuable insights. या So, probably if you could share some tips or anything you would like to add towards the end of this video. यार VIT स्पेसिफिक आई वुड सजेस्ट कि यार VIT में हो तो पढ़ाई तो करो पर उसके साथ साथ मजे भी करो। मतलब यार ये अभी कॉलेज लाइफ है तो अभी नाउ बिकॉज अब मेरी पूरी निकल गई है तो एज मच एज आई हेट दैट आई मिस दैट अ लॉट बिकॉज ऑफ द पीपल अराउंड। ठीक है, अभी लगता है कि यार कॉलेज कब खत्म होगा, कब हम घर जाएंगे, बट ट्रस्ट मी वंस यू लीव दैट यू विल मिस दिस पार्ट, राइट। मतलब उसके बाद इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी, यू विल बी डूइंग योर 9 to 5 जॉब और मे बी यू विल बी गोइंग फॉर मास्टर्स और बाकी कुछ आ जाएगा। दिस टाइम विल नेवर कम बैक। ट्राई टू मेक मोर एंड मोर फ्रेंड्स आई वुड सजेस्ट। डोंट जस्ट एक शेल में मत रहो कि बस मैंने एक बबल बना लिया उसी के अंदर मैं रहूंगा। ट्राई टू डू डिफरेंट थिंग्स। तुम्हें कुछ नहीं भी आता है, तुम्हें डांस नहीं आता है पर तुम्हें डांस अच्छा लगता है, जाके डांस क्लब का ऑडिशन दे दो।
तुम्हें मे बी सिंगिंग नहीं आती, या तुम्हें मान लो वो डिबेट नहीं करना नहीं आता, राइट, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स प्रॉब्लम है, आई थिंक देयर इज अ टेडेक्स क्लब इन वीआईटी, राइट, है ना, तो जाके उसमें पार्टिसिपेट कर लो, जस्ट टेल देम दैट आई वांट टू वॉलंटियर, टेक पार्ट इन हैकेथॉन्स। मतलब मैंने मैंने आई थिंक बहुत कम हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करा है, क्योंकि मुझे हमेशा डर लगता था यार, क्योंकि मतलब मेरे को हमेशा वो प्रेशर फील होता था कि एक रात में मैं कुछ भी, मतलब मैं क्या ही बिल्डअप कर लेंगे हम लोग, तो आई वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ वन हैकेथॉन, डीएससी का हैकेथॉन था। बट वीआईटी में ऑलमोस्ट देयर इज एन हैकेथॉन सीजन आई थिंक जो होता है, राइट, जिसमें बहुत सारे हैकेथॉन्स होते हैं, बहुत सारे क्लब्स हैकेथॉन्स ऑर्गेनाइज कराते हैं। जस्ट टेक पार्ट इन दैट, इट्स एन ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस। वो 36 आवर्स में तुम्हें जितना सीखने को मिलेगा ना, तुम्हें 3-4 महीनों में नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन रह गया था, मेरे को आपके आंसर से आया कि पीपल हु टेंड टू परस्यू एमबीए और मास्टर्स आफ्टर their degree, should their profile be slightly different from the person who is probably trying to get a job? Because probably like people tell like they should focus more on having research papers and all the other set extracurriculars. They should focus more on that rather than focusing on getting internships and all. Right. Is that true? So a lot of my people, lot of my friends actually are going for masters or prepared for masters. So of course research papers तो important होते हैं। मुझे जितना पता है कि आपको 2-3 research papers in good publications चाहिए ही होते हैं if you are doing I think MS and CS. बाकी CGPA matters a lot I think for this thing. तो जितने भी लोग मैं जानती हूँ who are going for masters, they were very serious about their CGPAs कि यार उनका 9 point, not just 9 pointers like 9.3, 9.5 मेंटेन करके रखते थे, क्योंकि मतलब पता है कि मास्टर्स में हेल्प करता है CGPA आगे जा करके, राइट। एंड इंटर्नशिप्स, ऐसा नहीं है कि इंटर्नशिप्स विल नॉट हेल्प, लाइक आपका वर्क एक्सपीरियंस विल डेफिनेटली हेल्प if you are pursuing from if you want to go for masters abroad, right? So internships in relevant field will definitely help, but yes, research papers and CGPA are two things I think which is very important, and LORs bhi chahiye hote hain, so it is really important that What exactly is LORs? so letter of recommendation, Okay. basically you should maintain a good लाइक मतलब तुम्हें अब एक प्रोफेसर के अंडर, फॉर एग्जांपल जैसे आप रिसर्च पेपर भी लिखते हो, राइट, तो यू राइट अंडर अ प्रोफेसर, एंड यूजुअली जितना मुझे पता है, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दैट, बट वही प्रोफेसर आपके लिए LOR भी लिख करके देता है, राइट, लाइक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। आई थिंक मतलब नाम से इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी दैट ही और शी राइट्स अबाउट यू, एंड बेसिकली फॉर एनी गुड यूनिवर्सिटी आई थिंक 2 या 3 LORs चाहिए होते हैं। सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आप एक किसी प्रोफेसर या 1-2 प्रोफेसर्स के साथ यू मेंटेन दैट कि मतलब वो आपका एट द एंड ऑफ 4 इयर्स आपका LOR लिखने के लिए तैयार हो, राइट। तो जस्ट मेंटेन दैट गुड कम्युनिकेशन विद दैट वन प्रोफेसर, उस प्रोफेसर के अंदर काम करो, राइट रिसर्च पेपर्स अंडर देम, टेक कोर्सेज अंडर देम, राइट, बिकॉज आप LOR ऐसे नहीं लिखवा सकते किसी से भी आप लिखवा दोगे, यू शुड हैव वर्कड अंडर दैट पर्सन फॉर देम टू राइट एन LOR फॉर यू। Thank you so much, Didi. That was all from our side.